Hello students, moving to question number 29 of alcohol, phenols, ether NCERT. Explain the fact that in alkyl aryl ethers means aromatic ether जिसमें benzene ring हो, the alkoxy group activate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. This is the first part, and in second part it directs the incoming electrophile at ortho and para position. Means we need to talk about aromatic ether and its electrophilic substitution reaction. What do you mean by electrophilic substitution reaction? In which electrophile will attack. Now electrophile will attack on the benzene ring. Everybody see here, this is purely both the questions are having same reason, that is resonance effect. What is resonance effect? Delocalization of pi bond electrons. Here lone pair will move to make a bond and there is the formation of negative charge at this position. कैसे होगा हमारे पास resonance? There is a double bond OCH3, O is having positive here but negative charge at this ortho position. Again this is resonance, double bond, single bond, negative charge. What are the conditions of resonance? Double bond, single bond, double bond. Whenever there is double, single, double, that means resonance is there. Double, single, triple, resonance is there. Double, single, negative charge, double, single, positive charge, or double, single, lone pair. That means resonance is there. Okay, so here is double, single and negative charge. Now negative charge will move to make bond and double bond will break to give me negative charge at para position. This is at para position. Again we will draw the third resonance structure. Here OCH3, O is having positive charge, negative charge move to make bond, whereas double bond will split to give me negative charge, results in the next resonance structure. Again we are having double, single, negative, नेगेटिव मूव करेगा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा. अब हमने ये देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज मूव करके बॉन्ड आया है वो कौन सी पोजीशन पर आया है, और हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है बॉन्ड ब्रेक करके, वो देखना है हमने. इन दिस स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड and fourth we can see that negative charge is at ortho and para position, not at meta position. यहाँ ये meta होती है ये वाली, these are the meta position, but negative is at ortho and para. That means whatever the incoming electrophile is entering, attacking on this benzene ring, there will be at ortho and para position. और इसी एरोमेटिक की वजह से ये हमारे पास क्या हो रही है, बेंजीन रिंग क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है. इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो आपको आंसर में ये लिखना है ड्यू टू रेजोनेंस. फर्स्ट का आंसर लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस, एंड इन सेकंड you will write due to resonance there is negative charge on ortho and para position which direct the incoming electrophile at ortho and para position. मेटा पर वो नहीं जाएगा. इस तरह से आप थ्योरी में जो नोट्स मैंने दे रखे हैं वहां लिख रखा है, बट आपको ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जरूर बनाने हैं. और लास्ट वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी मैं कंप्लीट कर देता हूं. यहां ये कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, O will be stabilized by its lone pair. So these are the 5 resonating structure of methoxybenzene, or I can say alkyl aryl ether. Moving to question number 30. चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं अल्कोहल फिनोल एनसीईआरटी में. क्वेश्चन नंबर 30 मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 28 में करवा रखा है. तो क्वेश्चन नंबर 28 की वीडियो आप देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 कवर करा हुआ है मिथॉक्सीमीथेन की HI से विद मैकेनिज्म. तो दोबारा वीडियो बेफालतू में लंबी होगी, तो हम क्या करते हैं 31 करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करनी है एल्काइलेशन ऑफ एनीसोल. अब देखो एनीसोल, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करा था कि वट एवर द इलेक्ट्रोफाइल इन एनीसोल इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. ये हमने अभी पढ़ा ड्यू टू रेजोनेंस. जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यही थी कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा, और पैरा मेजर होता है स्टूडेंट्स और ऑर्थो क्या होता है माइनर, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस. वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो ऑर्थो वाला कम होता है, पैरा वाला ज्यादा होता है. ओके, तो ऑर्थो वाले को भी लिखना है, पैरा वाले को भी लिखना है, बट वो माइनर हो जाएगा, पैरा वाला मेजर हो जाएगा. ओके, हमने फिनोल्स में पढ़ रखा है. अब तो बहुत बात कर रखी है हमने, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचनी ताकि अगले एनसीईआरटी भी जल्दी हो जाए, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हम अपलोड करेंगे आपके लिए.
इसी के साथ चलिए OCH3 बेंजीन के साथ आ गया, एनिसोल आ गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन, लास्ट वाले पार्ट में एसाइलेशन भी है। व्हाट इज एल्काइलेशन? वी विल अटैक CH3Cl एंड इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, which is the positive species in this? This is the positive species CH3 alkyl group. So what will be the compound form here? Here compound will be para, major compound will be para 1. आपको माइनर लिखना है तो आप माइनर भी लिखिए, यहां CH3 लगाइए। क्लियर हो रही चीज है। और अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आ जाए स्टूडेंट्स, डी पार्ट करवा रहा हूं आपको, व्हाट इज एसाइल ग्रुप? CH3COCl in presence of FeCl3. Here the positive electrophile is CH3CO. CH3CO is positive electrophile, that means this is anisole, and at para position it will be COCH3 at para position. This is D part. B is nitration. What do you mean by nitration? Reaction with HNO3 with few drops of H2SO4. हमको पता है इसमें हमारे पास पॉजिटिव स्पीशीज कौन सी होती है? NO2. NO2 will move at ortho and para. मैं सिर्फ पैरा वाला लिख रहा हूं मेजर, आप माइनर भी लिखिए। अगर एग्जाम में आ रहा है तो मेजर माइनर दोनों लिखिए, ठीक है। इसका जैसे अगर मेरे को माइनर भी लिखना है तो मैं लिख देता हूं साथ में, ये देखिए OCH3, यहां भी CH3 आएगा। एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट इन दिस? HCl, ये भी लिखिए। इसमें भी बाय प्रोडक्ट क्या है? HCl। सारा बाय प्रोडक्ट लिखना है आपको। और यहां बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? वाटर। दिस इज नाइट्रेशन अगेन। एंड लास्ट इज ब्रोमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोमिनेशन? Br2 in presence of FeBr3. Br2 in presence of FeBr3. Here the species which is going at para position will be bromine. ये देखिए ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा। और बाय प्रोडक्ट क्या जाएगा? HBr बाहर निकलेगा। तो ब्रोमिनेशन करा लो। अगर आपको क्लोरीनेशन आ रहा है तो क्लोरीनेशन करा लीजिए। नाइट्रेशन आ रहा है तो ये नाइट्रेशन हो गया, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। एक सल्फोनेशन भी होता है। क्या है सल्फोनेशन? रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ऑर्थो एंड पैरा पे हमारे पास लगेगा SO3H, सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप, ये लिया SO3H। ये कुछ पिक्चर बनेगी। तो ये तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने सारी करवा दी हैं, 6 टाइप्स करवा दी हैं। हमको उसने 4 ही दे रखी हैं। हो सकता है आपको एग्जामिनर इन 4 की बजाय फ्रीडल क्राफ्ट ब्रोमिनेशन डाल दे या फिर आपको डाल दे सल्फोनेशन। हमको सारे प्रिपेयर करने हैं। एक चीज याद रखिए, ऑर्थो एंड पैरा पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल ने लगना है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के कारण। और पैरा वाला मेजर है क्योंकि वो ज्यादा सिमेट्रिक है, ज्यादा स्टेबल है।